ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਰਸਨਾ, ਨਾਸਕਾ, ਤਵਚਾ, ਖਲੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਉਪਾਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਵਚਾ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੱਥਰ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ, ਦੂਸਰੀ ਹਸਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਥਮ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੰਗ, ਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। 80% ਗਿਆਨ ਬੈਰੂਨੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਦ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਧ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਰਪਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
अख नूं भी वेखण वास्ते ये अख कैसी है, मेरी अख कैसी है, किस तरह दी है। ये पुतले काले ने, नीले रंग दी है, वड्डी है, छोटी है, मृगनैन ने या आम पद्धर दियां अखां ने। ये बहुत दर्पण तो मिलेगा, दूसरे तो मिलेगा। अख अख नूं नहीं वेख सकती। अख पहाड़ां नूं वेख सकती है, पर अख दे अंदर एक निक्की जी रड़क पै गई है, नहीं वेख सकती। दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। दूसरे नूं कहने असी जरा वेख मेरी अख दे च की पै गए। हद हो गई। ये अखां जो पहाड़ां नूं वेख सकदियां ने, सूरज चंद तारियां नूं वेख सकदियां ने, अख दे अंदर पई हुई रड़क नहीं वेख सकदी। और निक्की जी ये रड़क, निक्का जिहा ये तिनका वेखण दे च अखां असमर्थ ने। भाव वेखण लई कोई दूरी चाहिए। ये दूर दे ही दर्शन कर सकते हैं। अखां वास्तविक इंज कह लईए दूरदर्शनी ने। अखां दे उपर किताब रख लईए, नहीं पढ़ सकांगे, क्योंकि अखां नूं अखर ही नहीं दिखाई देणगे। अखां दे उत्ते कोई तस्वीर रख लईए, नहीं वेख सकेगी। अख दूरदर्शन है। दूरदर्शन का ही बहुत करांदी है। कुछ ना कुछ दूरी चाहिए। 1 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, 100 फुट की दूरी चाहिए। इंज कह लो अखां का ना ही होना चाहिए दूरबीन। कुछ ना कुछ दूरी चाहिए तां ये बीन, बीन कहते हैं वेखने नूं। फारसी का लफ्ज बीनाई, वेखना। दूरबीन, दूर तो वेखना। बिल्कुल अखां दे कोल है, अख नहीं वेख सकती। अखां ते दूरबीन ने, थोड़ी थोड़ी दूरी चाहिए, अख वेख सकती है। लेकिन बहुत निकटता है, बहुत निकटता है, नहीं वेख सकती। पर अख दे च रड़क पै गई, तिनका पै गया जद अख नूं ओ नहीं दिखाई देंदा। पर अखां दे विच जो बैठा है, जिहदी शक्ति नाल अखां वेख रही ने, ये अखां किस तरह वेखणगियां उसनूं। इस वास्ते कल युग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया, नानक से अखणियां बेअन जिने दिसंदो मां पिरी। वो अखां होर ने, होर ने, होर ने, जिन्हां नाल परमात्मा नूं वेखीदा, ईश्वर नूं वेखीदा। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोण ना आए, अंधे से ही नानका जो खसमों गुथे जाए। बिल्कुल उन्होंने अंधा ना आखो जिन्होंने पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, दूर दियां चीज़ां नहीं दिखाई देंदियां, वस्तुआं नहीं दिखाई देंदियां, मनुख नहीं दिखाई देंदे, संसार नहीं दिखाई देंदा। उसनों अंधा आखो जो निकट तो निकट निरंकार है, रोम रोम दे च रमिया होया, जिसनों ओ नहीं दिखाई देंदा, वो अंधा है, वो अंधा है। इंज कह लो एक दूर दे तल दा अंधा है, एक निकट दे तल दा अंधा है। ये दूर दे तल दे अंधे, दूरदर्शन जिन्होंने दूर दियां चीज़ां दिखाई दे सकन, इस तरह दे अंधियां दी तादाद संसार दे च बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े ने, थोड़े ने। सारी दुनिया दे अंधियां दी गिनती करिए ते दुनिया दी कुल आबादी दा ये 1% हिस्सा भी नहीं बनते। बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने जिन्होंने दूर दे दर्शन नहीं होते, या इंज कह लो जिन्हां दियां अखां दूर दर्शन नहीं ने, इस तरह के नेत्रहीन, इस तरह के अंधे बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। पर जिन्होंने निकट दे दर्शन नहीं होते, उस प्रभु दे दर्शन नहीं होंगे जो नेड़े तो नेड़े, निकट तो निकट, निकट तो निकट। उन्हां अंधियां नाल सारा संसार भरिया है। जगत अंधा है, निकट तो निकट जो परमात्मा है नहीं दिखाई देता। जगत दूर दे तल ते सुजाखा है, निकट दे तल ते अंधा है। इंज कह लो मनुख दियां अखां दूर दर्शन ने, निकट दर्शन नहीं ने। दूर दर्शन ने, नजदीक दर्शन नहीं ने, निकट दर्शन नहीं ने। इसका मतलब जो नेड़े तो नेड़े है, जब दिखाई नहीं देता तो उसका ज्ञान भी नहीं।
जब दिखाई नहीं देता तो उसका बोध भी नहीं, तो सारा संसार ईश्वर के तल ते अज्ञानी मनिया जाएगा, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि पदार्थ का बोध है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। फल फूल वनस्पति रंग रूप आकार का ज्ञान है, पर जो आकार तो रहित निराकार है उसका ज्ञान नहीं है। अंधा है मनुख परमात्मा के तल ते, अध्यात्मिक तल ते। उर्दू दे हो गुजरे इस सदी दे मायानाज शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो कहते ने, दिले बिना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस्लाम दे अरदास लई लवस प्रार्थना लई जो शब्द है वो है दुआ। भी खुदा दे अगों दुआ कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। ये आलम ये अनुभवी पुरुष कहता है, खुदा दे कोलों प्रभु दे कोलों जब तू दुआ करें, उसदे अगों दुआ करें तो खुदा दे कोलों ये भी मंगया कर, ऐ खुदा वो अखां दे जिहड़ियां तैनूं वेख सकन। दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। होवेगा अक्षरी ज्ञान दे च भी कुछ सरूर, होवेगा अखरी बोधां दे च भी कोई सूझ ते समझ, लेकिन इस दे च सरूर नहीं है, इस दे च मस्ती नहीं है, इस दे च वो रस नहीं है जिस दे नाल आकार दे जगत दे सारे रस बेरस हो जाते हैं। तो ये आलम कहता है, मंगया कर उस अख नूं जो निकट तो निकट है, देख सके। जगत दे सारे संबंध भी दूर ने और कई दफा ते बहुत दूर चले जाते हैं। मां का संबंध, पिता का संबंध, भरावां का संबंध, भैणां का संबंध, पत्नी का संबंध, पति का और बच्चे अक्सर हर वक्त नाल नहीं होंदे, दूर हो जाते हैं। कई दफा ते मौत उन्होंने हमेशा लई दूर कर देती है, हादसे हमेशा लई दूर कर देंदे ने। पर कितने भी नेड़े होवन फिर भी दूर ने। 1 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, आखिर दूरी है। लेकिन जो नेड़े तो नेड़े रोम रोम विच होते नहीं दिखाई दे रहे। दृश्य दिखाई दे रहा है, अदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। आकार दिखाई दे रहा है, निराकार दिखाई नहीं दे रहा। तो उस निराकार नूं किस तरह वेखिए। साडे देश के ऋषि मुनिया ने एक तीसरी अख का भी जिक्र किया है। शायद परमात्मा का एक नाम है त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला। और बहुत सारे मनुखों के नाम भी चूंकि धार्मिक ने, ईश्वरमयी ने, तो त्रिलोचन नाम रखा जाता है। त्रिलोचन 3 नेत्रां वाला, 3 अखां वाला। परमात्मा ने पशुओं को भी 2-2 अखां दित्तियां ने, मनुख को भी 2 दित्तियां ने। त्रिलोचन, 3 नेत्र, तीसरी अख। वाकई विद्वान इस त्रिकुटी दे 2 अखां दे मध दे तीसरी अख मनते हैं। वो है ऐसी अख जो अदृश्य है। कई दफा तो ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, संसार भी नहीं दिखाई देता, रिश्ता टुट जाता है, तां भी तीजी अख नहीं खुलती। जीवन यात्रा उसकी सफल मननी चाहिए है। 2 अखां बंद होवन उस तो पहले तीसरी अख खुले। संसार नाल देखण दा रिश्ता टुटे उस तो पहले निरंकार दे दर्शन हो जाण। पदार्थां नूं वेखण दा संबंध टुटे उस तो पहले परमात्मा दिसण लगता है। परिवार दृष्टि तो ओझल होवे उस तो पहले निरंकार दृष्टि दे आ जाए। और मनुख मान नाल कह सके, मैं पेखे होरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, ऊंचियां तो उच्चा जो महान वेख रहे हैं, असी वेखे। भगत कबीर
उस तीजे नेत्र नूं भी दो दो नेत्रां नाल तशबीह देंदे ने, दोए दोए लोचन पेखा हाँ हर बिन अवर न देखा। मैं तो वेख रहा, हरि तो बिना हुण कुछ भी नहीं दिखाई देता, हरि ही दिखाई देता। दरअसल वो तीजा नेत्र इन्हां दो अखां दे समा जांदा है। वो तीजी अख इन्हां दो अखां नूं महान कर देंदी है। कई दफा देखे है, खुशी विच, महान खुशी विच अखां पहले नालों ज्यादा खुल जांदियां, वड्डियां हो जांदियां। जिसनों मन देखना चाहता है और देख के रस मिले, देख के खुशी मिले, अख वड्डी हो जाती है। जिसनों मन देखना ही नहीं चाहता और देख के दुख होवे, देख के घृणा पैदा होवे, देख के दुविधा पैदा होवे, अख छोटी हो जाती है, अख छोटी हो जाती है। पर जिस दिन प्रभु की झलक मिलती है और वो तीसरी शक्ति, दृश्य शक्ति इन्हां दो नेत्रां दे समांदी है, ये दो अखां बहुत महान हो जांदियां, बहुत वड्डियां हो जांदियां ने। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का रूप जो है दिखाई देने लग पैंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होके भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहंदे ने, पुरखा तू कुछ मंग, तू कुछ मंग, असी तेरी झोली दे च पाईए, तैनू दे के सानू खुशी होवेगी, तू मंग सानू खुशी होवेगी। हैं ऐसे रिश्ते जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है, और दुनिया विच हैं ऐसे संबंध जिन्हां कोल खो के खुशी मिलती है। खो लईए इन्हां दा, खो लईए, धन खो लईए, संपदा खो लईए, इज्जत मान मर्यादा खो लईए, मौका मिल जाए तो जिंद जान भी खो लईए। हैं कोल खो के सुख मिलता है, जिन्हां कोल खो के आनंद मिलता है। पर दुनिया विच हैं ऐसे जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है, दे के प्रसन्नता मिलती है, दे के आनंद मिलता है। इसनों संपदा दे दईए, इसनों धन दे दईए, इसनों मान प्रतिष्ठा दे दईए, इनों मान सन्मान दे दईए, और जे किधरे लोड़ पै जाए तो इसनों अपनी जिंद जान दे दईए। दे के भी खुशी मिलती है, खो के भी खुशी मिलती है। जो अपना है, अजीज है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मन नूं चंगा लगता है, उन्होंने देख के खुशी मिलती है, दे के खुशी मिलती है, अखां वड्डियां हो जांदियां। जिस नाल घृणा उस कोल खो के खुशी मिलती है, अख छोटी हो जाती है, अख वेखना भी नहीं चाहती उसको। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, नंद लाल तू मैनू बहुत अजीज है, तू मैनू बहुत प्यारा है, तू मैनू बहुत चंगा लगता है। तेरी सेवा, तेरा ज्ञान, तेरी इबादत, तेरी श्रद्धा, तेरी भावना वाकई महान है। तू कुछ मंग, असी तेनू देईए, तू मंगे ये साड़ी खुशी, असी तेनू देईए ये साड़ी प्रसन्नता, ये साड़ा आनंद, तू मंग। भाई साहब भाई नंदलाल मंग करते हैं। यह गल वखरी है कि भाई साहब का सारा कलाम पर्शियन दे है, फारसी जुबान दे है, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दुनिया की भाषावां दे संबंध विच भावना यह है, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां विच तेरी ही जबान है, सारी भाषावां विच तेरी ही भाषा है, सब तेरी ही भाषा है। जब सब कुछ तैथों आया है तो भाषा भी तैथों आई है, जब सब कुछ तैथों आया है तो जबान भी तैथों ही आई है, जब जबान तैथों आई है तो जबान तो निकले अखर भी तैथों ही आए ने, और किधरों नहीं आए। भाषा के संबंध दुविधा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज मिटाते हैं, क्योंकि किधरे मजहब के नां ते भेद खड़ा होंदा है, किधरे जात पात के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, किधरे मुल्क ते प्रांत के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, और किधरे भाषा के नां ते भेद खड़ा हो जाता है। भाषा के भेद नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मिटाते हैं, फरमान करते हैं, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां विच तू ही है, जबान चो बोले हुए अखरां विच तू है।
और निकली हुई आवाज धुन ये तो ही है। भाई साहब भाई नंद लाल उन्होंने जो जुबान है वो पर्शियन है, फारसी है। जब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने मंग करो मंग करो, असी दे के खुश होवांगे, तो मंग सानू दे के प्रसन्नता मिलेगी। तो भाई साहब जी मंग करते हैं, कहते महान मनुखों की मंग भी महान होती है, तुच्छ मनुखों की मंग भी तुच्छ होती है। जैसे बच्चा खिडौने लिए रोएगा, खिडौने की मंग करता है, मामूली है, तुच्छ है, सोच शक्ति मामूली है। मंग तो ही पता चलता है मनुख की है, वास्तविक मनुख की है। जिस मनुख की मंग बेमैनी है, जिस मनुख की मंग जड़ है, जिस मनुख की मंग कोई खास नहीं, वो मनुख भी कोई खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। महान मनुखों की चाहत बहुत महान होती है, अजीम होती है। तो भाई साहब भाई नंद लाल अपनी मंग जगत दे दाते सर्वशक्तिमान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अगों रखते ने। या इलाही चश्मे बीना ए बेदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बेदे। ऐ मेरे इलाही, ऐ मेरे गुरु, जे देना है तो ओ अख दे जिहड़ी तैनू वेख सके, जिहड़ी तैनू वेख सके। बंद अखा ने मनुख सुता पिया, जगाण वास्ते आवाज चाहिए होती है, आवाज खड़ाक। इसी तरीके नाल परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो शब्द है, रसना अगर उसनू अलापे ते कन उसनू सुनन, तो एक दिन मन विच चाहत पैदा हो जाती है। जिसनू सुन रहे हैं, जिस तो मन प्रभावित है, उन्होंने वेखिए। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रपे खण का जाओ। वेखण की लालसा पैदा हो गई है, वेखण का चाह पैदा हो गया, वेखण की भुख पैदा हो गई है। जैसे जैसे जप करदियां करदियां अंदर दियां शक्तियां जागदियां ने, और एक दिन वाकई अखां पूरियां खुल जांदियां ने। और जैसे खुलदियां ने, फिर संसार नहीं दिखाई देंदा, निरंकार। फिर पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, परमात्मा। फिर परिवार नहीं दिखाई देंदा, फिर निरंकार दिखाई देंदा है। मां दे विच प्रभु की झलक मिलती है, पिता दे विच प्रभु की झलक मिलती है। जैसे कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, मात पिता सुत बंदप भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। ए परिपूर्ण परमात्मा, हुण ते मां दे रूप विच भी तू दिखाई देना। मैं छोटा सी, मासूम सी, कमजोर सी, तू मां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। पर जद मैं बुढ़ा बन गया, कमजोर हो गया, लागर हो गया, तो पुत्र दे रूप विच मेरा सहारा बनया। किधरे पत्नी दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू पति दे रूप विच मेरा सहारा बनया। तू पुत्रां दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू भरावां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। परिवार विच निरंकार दिखाई दे रहा है, पदार्थां विच निरंकार दिखाई दे रहा है। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का जो है रूप दिखाई दे रहा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। अखां नूं उपदेश कर रहे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज बिरद बाबा। हे अखियो, प्रभु तो बिना और कुछ ना देखना। धन गुरु नानक देव जी महाराज तो इत्थे तक कहते हैं, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन, जे कर दूजा वेख दे, जन नानक कढ़ दे चन। अखां विच इतना प्रेम, हर पासे हरी हरी हरी, पर जे कर दूजा वेख दे। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, ए अखियो, ते होर नूं देखिया, थानू कुछ होर कढ़ दे चन, कढ़ देना चाहिए इन्हां, की लोड़ है इन्हां दी। अखां उस दिन महान हो जांदियां ने जब जर्रे जर्रे च प्रभु दिखाई देने लगता है। अखां उस दिन महान हो जांदियां ने जब शरीर दे रोम रोम विच परमात्मा दिखाई देने लग पैंदा है। इसे नूं कहंदे ने अध्यात्मक दृष्टि।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਸਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਮਾਰੀ ਗਨਕਾ ਦੇਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਲੀ, ਫੈਸ਼ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੇਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਜਦ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।